Hello friends, welcome to another new session of Smita classes. We were studying the chapter water of science book of standard 6. The name of the book is New Approach to Science and it is the 14th chapter that we were studying. The title of the chapter was water. We have completed 3 parts of the chapter and today we will be doing the 4th part, which would be the concluding part that would end the chapter. So we will start reading. Conservation of water. We all use water in many ways, but it is a limited resource. That is why it is important that we all find ways to conserve water every day in every possible way, because each drop counts. If everyone saves a little, we together can save a lot. Water conservation is a wise and judicious use of water. The focal idea in the conservation of water is regulation of the rate at which fresh water flows away. After all, the amount of water we have at our disposal will always remain more or less the same. Therefore, the water that has been polluted in the process of usage has to be purified for reuse. Ways of conserving water. Get all leaking taps repaired. Use a bucket for taking a bath instead of a shower. Instead of washing the floor, use a mop. Wash fruits and vegetables in a bowl of water, not under a running tap. Collect rainwater and use it for gardening and recharging groundwater. Wash your cycles, cars, etc. with a bucket of water instead of pipes. Rainwater harvesting. The process of rainwater harvesting involves the collection and storage of rainwater either directly for use or by ensuring that it reaches the ground in order to replenish the groundwater. Rainwater harvesting fulfills many objectives. In a nutshell, these are as follows. It helps conserve the rainwater and allows it to be used for household purposes, livestock as well as for irrigation. It helps replenish the groundwater. It helps reduce the problem of water stagnation and flooding during the monsoon. It aids in checking soil erosion due to surface runoff. कंजर्वेशन ऑफ वाटर है ना, कि वाटर की बचत कैसे की जाए, कैसे वाटर को बर्बाद ना करके उसकी बचत की जाए. क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जितना भी 3% जो है वही फ्रेश वाटर है जो हम लोग को अवेलेबल है, जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं. बाकी सब नमकीन पानी है समुद्र का जो हम लोग यूज़ नहीं कर सकते. ठीक है, तो हम लोग वाटर को बहुत सारे तरीके से यूज़ करते हैं. बाथिंग, कुकिंग, वॉशिंग, इरिगेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा यूज इन इंडस्ट्रीज़. पर उसका जो वो स्रोत है वाटर का, रिसोर्स उसका लिमिटेड है. जहाँ से आ रहा है पानी वो लिमिटेड है ना. क्या है, ट्यूबवेल है, वेल है, रिवर, पॉन्ड्स, लेक्स, इतना ही है. तो वो एक लिमिटेड रिसोर्स है. ठीक है, आप जब चाहेंगे अचानक से बहुत बहुत पानी हर जगह नहीं आप ला पाएंगे. अंडरग्राउंड लेवल जितना पानी का रहेगा उतना ही आप पाएंगे, है ना, अंडरग्राउंड वाटर जितना रहेगा. इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग जो है वाटर की बचत, जो है फ्रेश वाटर की बचत हर दिन ही करें. ठीक है, और हर पॉसिबल तरीके से करें, क्योंकि एक एक बूंद पानी की जो होती है वो महत्व रखती है. बोलते हैं ना, एक हिंदी में एक मुहावरा है, बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है ना. तो उसी तरह जो है एक एक बूंद पानी की महत्व रखती है. हम लोग को ये नहीं समझ पाते, पर जिस एरियाज़ के लोगों को पानी की प्रॉब्लम होती है, खासकर डेजर्ट एरिया के आसपास, वो लोग समझते हैं पानी का इम्पोर्टेंस क्या होता है. ठीक है, तो इसलिए हर कोई अगर थोड़ा थोड़ा पानी सेव करेगा, बचाएगा, ठीक है, तो हम लोग हर एक इंसान थोड़ा थोड़ा अपने अपने लेवल पे पानी बचाएगा, तो हम लोग सब मिलके बहुत ज़्यादा पानी की बचत कर पाएंगे. ठीक है, तो आखिर पानी की बचत क्या है? पानी की बचत है कि आप पानी का जब इस्तेमाल करें, उपयोग करें, तो उसको वाइजली और जुडिशियसली करें. मतलब समझदारी से पानी का इस्तेमाल करें और न्यायपूर्ण तरीके से करें, जैसे कि आपको भी पानी मिले, दूसरे को भी पानी मिले, इस तरीके से, है ना. सही यूज़ करें, वेस्ट नहीं करें और समझदारी से यूज़ करें. तो इसका मेन फोकल आइडिया या मेन आइडिया पानी की बचत में क्या है कि फ्रेश वाटर जो बह जा रहा है, बह के बर्बाद हो रहा है, उसको हम लोग कंट्रोल करें, उसके बहने को, उसको रेगुलेट करें, उसके बहने को हम लोग कंट्रोल करें कि फ्रेश वाटर बेकार का फालतू ज़्यादा बह नहीं जाए. मेन आइडिया इसका यही है. ठीक है, क्योंकि जो है जो वाटर हम लोग को मिल रहा है, जितना हम लोग यूज़ करते हैं उतना ही हम लोग उसी को हमको समझदारी से यूज़ करना है. क्योंकि ऐसे भी जितना फ्रेश वाटर मिल रहा है वो हमेशा आज नहीं तो कल उतना ही रहेगा. और जो है इसलिए अगर हम लोग उसको समझदारी से यूज़ नहीं करें तो फ्रेश वाटर धीरे धीरे कमता जाएगा और हम लोग को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा. ठीक है,
इसी तरह जो वाटर पॉल्यूट हो गया है यूज़ करते समय, जैसे इंडस्ट्रीज़ वगैरह में जिसमें केमिकल्स वगैरह चला जाता है जो वाटर में, तो वहाँ पे भी क्या बोला जाता है कि इंडस्ट्रीज़ के बाहर भी एक डिस्चार्ज ट्रीटमेंट प्लांट लगाना पड़ता है कि आप उस पानी को अच्छे से जो है सफाई करके बिल्कुल हार्मलेस करके उसको वाटर बॉडीज़ में छोड़ेंगे। ठीक है, तो यानी कि वाटर जो है, जो कि इतने दिन हम लोग, एक और इसमें है पानी की बचत में एक आइडिया ये भी है कि जो वाटर प्रदूषित हो गया है, जो पोल्यूटेड हो गया है, उसको प्यूरिफिकेशन किया जाए, उसको ऐसे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में उसको प्यूरिफिकेशन किया जाए ताकि उसको हम लोग दोबारा से यूज़ कर सके, पोल्यूटेड वाटर को प्यूरिफाई करके दोबारा से यूज़ कर सके। अब क्या क्या तरीका है पानी की बचत करने का? ठीक है, अगर आपने बहुत जगह देखा होगा, आपके घरों में भी, हॉस्पिटल्स में, बस स्टैंड्स में, कि टैप्स लीक करते रहते हैं ना, टप 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 पानी बढ़ता रहता है, बहता रहता है, बहता रहता है। तो है कि आप अगर एक एवरेज निकालेंगे कि एक दिन में कितना पानी बह जा रहा है, तो वो अमाउंट बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, जो कि लगता है कि बहुत धीरे धीरे बह रहा है, पर वो बहुत कंटिन्यूस बह रहा है ना। इसलिए कहीं भी अगर लीकिंग टैप्स रहे तो उसको आप कोशिश करिए कि उसको आप रिपेयर करा दें। ठीक है, इसी तरह जब आप नहाने जाते हैं तो आप शावर का यूज़ नहीं करें, क्योंकि शावर में अनलिमिटेड पानी बहता है। आप एक बकेट और एक मग यूज़ ले, एक बकेट भर ले पानी और उतने को ही आप यूज़ करें। इसी तरह बहुत लोग होते हैं जो घरों को धो देते हैं ना, घर को धोने की जगह आप उसको पोछा लगाए, उसमें क्या होगा, कम पानी यूज़ होगा। इसी तरह बहुत लोग क्या करते हैं, एक एक आलू लेंगे, नल के नीचे धोएंगे, एक एक फूल गोभी के छोटे छोटे फूल को लेंगे, नल के नीचे धोते जाएंगे। ऐसा नहीं करना है। आप एक बाउल में पानी भरिए, उसमें डाल के आप धो लीजिए सारे वेजिटेबल्स को, उसके बाद उस बाउल के पानी को फेंक दीजिए। ठीक है, रनिंग टैप के नीचे नहीं धोना चाहिए, कि रनिंग टैप में एक बार में बहुत पानी बह जाता है। खुला नल अगर बहता रहेगा तो उसमें बहुत ही पानी बह जाता है। इसी तरह रेन वाटर को कलेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि उसको जो है गार्डनिंग में यूज़ कर सके, या फिर रिचार्जिंग ग्राउंड वाटर। देखिए बहुत सारे आजकल बड़े बड़े सिटीज़ में जो है घर बन रहे हैं ना, तो वो लोग क्या करते हैं कि एक कंटेनर टाइप का बना के रखे हैं नीचे, और छत वगैरह में जो रेन वाटर जमा हो जा रहा है उसको पाइप्स के थ्रू उस कंटेनर में ले आते हैं। फिर वो कंटेनर के पानी को आइदर वो लोग गार्डन वगैरह में यूज़ कर लेते हैं, या फिर उसको जो है एक गड्ढा बना के रखे हैं और पाइप के थ्रू उस कंटेनर का पानी को उस गड्ढे में छोड़ देते हैं, ताकि वहाँ से सीपेज हो के वो अंडरग्राउंड चला जाए। जहाँ पे मिट्टी का एरिया हो, कॉन्क्रीट एरिया में छोड़ने से तो पानी नहीं जा पाएगा अंडरग्राउंड, यानी मिट्टी का एरिया एक गड्ढा जैसा होगा, उसमें वो लोग वो पानी को छोड़ते जाएंगे, वो धीरे धीरे अंडरग्राउंड जाता रहेगा। ठीक है, तो इस तरह जो है ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करेंगे, मतलब ग्राउंड वाटर को हम बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि पानी को हम लोग नीचे ज़मीन में सीपेज होने का मौका देंगे, और वो रेन वाटर को हम लोग यूज़ कर लेंगे गार्डनिंग के लिए, पौधों वौधों में डालने के लिए रेन वाटर को यूज़ किया जा सकता है। इसी तरह जो है हम लोग, कई बार आपने देखा होगा, हम लोग साइकिल, कार ये सब धोते हैं कैसे, रनिंग पाइप से ना, पाइप को लगा लेते हैं नल में और ऑन कर देते हैं और उससे धोते हैं। ये भी मना किया जाता है, बोलते हैं बकेट में आप पानी लीजिए और उससे आप अपने गाड़ी, साइकिल, स्कूटर्स जो भी है उसको आप धोएं बकेट में पानी लेके। अब एक टेक्निक आजकल है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की टेक्निक है। इसमें क्या होता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग में क्या होता है कि पानी को कलेक्ट किया जाता है, ठीक है, और रेन वाटर को कलेक्ट किया जाता है और एक जगह स्टोर किया जाता है। हाँ, स्टोर करके, जैसा मैं आपको बता रही थी, डायरेक्टली उसको यूज़ कर लेते हैं। बहुत लोग उससे कपड़े धोने के लिए, गार्डन में देने के लिए, जानवरों को पिलाने के लिए उसको यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, और या फिर उसको इस तरीके से उसको ज़मीन में छोड़ते हैं कि वो अंडरग्राउंड चला जाए, ज़मीन के नीचे चला जाए, किसी गड्ढे में कि कुएं में भेज देंगे उस पानी को। इस तरह वो लोग उसको अरेंज करके रखते हैं कि वह ग्राउंड में चला जाए, ताकि जो है ग्राउंड वाटर रेप्लेनिश हो, ग्राउंड वाटर फिर से भरता जाए। नहीं तो अगर ऊपर से पानी ग्राउंड के अंदर नहीं जाएगा तो ग्राउंड वाटर धीरे धीरे, अंडरग्राउंड वाटर कम होता जाएगा। ठीक है, हमने पहले भी एग्जाम्पल्स बहुत सारे पढ़े हैं, बहुत सारे देखे भी हैं हमने, कि कोई एक ऐसा कॉम्प्लेक्स, फ्लैट कॉम्प्लेक्स जहाँ बहुत सारे फ्लैट्स हैं एक ही बिल्डिंग में, तो उन लोगों ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक की हुई है, जिसके कारण उनको गर्मियों के दिन में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होता है। कितने भी फ्लैट्स हों, कितने भी फैमिली मेम्बर फ्लैट्स में रह रहे हों, उनको पानी की प्रॉब्लम नहीं होती। क्यों? क्योंकि उन्होंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक वहाँ पे अपनाया हुआ है। ठीक है,
तो मेन गोल क्या है, रेन वाटर को हार्वेस्ट करने का मेन गोल क्या है कि उससे जो है रेन वाटर कंजर्व होता है, रेन वाटर की भी बचत होती है, क्योंकि वो हम जानते हैं प्योरीफाइड वाटर होता है ना, प्योर वाटर होता है, वो वेस्ट नहीं होता है और उसको घरों के कामों में भी यूज़ कर सकते हैं। इसलिए रेन वाटर को हार्वेस्ट किया जाता है, या जानवरों को नहलाने धुलाने के लिए या पिलाने के लिए दिया जाएगा, या फिर इरिगेशन के लिए, पौधों की सिंचाई करने के लिए। ठीक है, वो ग्राउंड वाटर को रेप्लेनिश करता है, अंडरग्राउंड वाटर को वह रिचार्ज करता है। रेन वाटर चला जाएगा ग्राउंड के नीचे और अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाएगा। इसी तरह जो है कई बार होता है कि जो है मानसून के समय जो है पानी कई बार जमा हो जाता है, मान लीजिए गड्ढों में जमा हो जाएगा या छत के ऊपर जमा हो जाएगा पानी, या आपके गार्डन में कहीं जमा हो जाएगा, तो वह धीरे धीरे सड़ने लगता है, या फिर जो है पानी सड़ने लगता है। और कई बार जो है वो रेन वाटर आपके घरों के थ्रू बाहर के ड्रेन्स में जाएगा, तो ड्रेन्स भी ओवरफ्लो करने लगते हैं, उनमें बाढ़ जैसी आ जाती है ना। इसीलिए कोशिश करना चाहिए कि रेन वाटर को बहने नहीं दे ड्रेन के थ्रू, और उसको हार्वेस्ट करके यूज़ में ला सके। इसी तरह जो है वो सॉयल इरोजन को भी रोकने में मददगार होता है। अगर हम रेन वाटर को ऐसे ही बहने दे देंगे, ठीक है, मान लीजिए ड्रेन्स में नहीं जा रहा है, वो रास्तों के ऊपर होके जा रहा है, तो रास्तों के साइड में जो ट्रीज़ है, ट्रीज़ के पास जो फर्टाइल सॉयल है वो भी बहता हुआ, मान लीजिए ट्री नहीं है, बस फर्टाइल सॉयल है, उस वक्त कुछ भी ट्री नहीं है, वहाँ पौधे वौधे नहीं, तो फर्टाइल सॉयल भी बह जाएगा उस पानी के साथ, तो सॉयल इरोजन होगा। तो इसलिए रेन वाटर को हार्वेस्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। Rainwater harvesting techniques. The process of rainwater harvesting is inexpensive and environment friendly. There are two main techniques of rainwater harvesting. Rooftop rainwater harvesting. It is a traditional technique and the structure used are underground tanks, check dams, rivers, ponds, etc. In this technique, rainwater is collected from the rooftop. Water is allowed to go into a storage tank through pipes. As water from the roof contains some soil, we should filter this water before use. This water then seeps into the soil to refill or recharge the groundwater. In the second method, water is collected to recharge wells. In order to do this, water is first collected either in pits, trenches, recharge shafts, etc., and then fed into the wells. Later, rainwater is allowed to flow into the ground from the dug wells, recharge wells that collect rainwater. This method helps raise the water table too. Rainwater can also be harvested for irrigation. This is done by the collection of water in fields or adjoining catchments. क्या होता है कि अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक जो है वह बहुत ही कम खर्च में होता है और एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। वो एनवायरनमेंट को नुकसान भी कुछ नहीं पहुंचाता है, हमारे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो दो तरीका है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का। एक है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसमें क्या होता है, छतों में जो पानी कलेक्ट होता है उसे पाइप्स के थ्रू नीचे लाया जाता है। लाकर उन्हें ज़मीन के नीचे कोई टैंक बना होगा, अंडरग्राउंड टैंक होगा या चेक डैम्स होगा, मतलब एक जो है बाउंड्री बना हुआ एक छोटा जो है, जैसे डैम्स में क्या होता है बाउंड्री के भीतर होता है ना, पानी जमा होता है एक तालाब के जैसा, तो वैसे ही घरों के भीतर भी एक ऐसा बनाया जा सकता है बाउंड्री वाला एरिया जिसके भीतर वह पानी जमा हो सके। या और जो है या फिर नदी तालाब जो भी है वो भी, उसमें भी रेन वाटर हार्वेस्ट होता है। जितने नदी तालाब आपके आसपास रहेंगे वो सब में रेन वाटर जमा होता जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि रेन वाटर को छत से जमा किया जाता है, फिर वाटर को पाइप के थ्रू एक स्टोरेज टैंक में भेजा जाता है। ठीक है, और जो है चूँकि छत के ऊपर थोड़ी धूल मिट्टी रहेगी तो उस पानी में मिट्टी भी रह सकता है, इसलिए उस पानी को अगर हम कपड़े वपड़े धोने के लिए यूज़ कर रहे हैं तो उसको पहले थोड़ा फ़िल्टर कर लेना चाहिए। ठीक है, उसको, और फिर उसके बाद जो है वो स्टोरेज टैंक के थ्रू उसको जो है भेज दिया जाता है। वो स्टोरेज टैंक में क्या होता है कि नीचे का एरिया वो कंक्रीट नहीं करते हैं, सिर्फ साइड का एरिया कंक्रीट कर देते हैं, तो वो नीचे मिट्टी ही रहता है, तो वो पानी वहाँ जमा होके नीचे मिट्टी के थ्रू जो है अंडरग्राउंड सीपेज हो जाएगा, ज़मीन के नीचे सीपेज होके चला जाएगा, तो ग्राउंड वाटर लेवल भी ठीक रहेगा। तो ये रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। नेचुरल तरीके से अगर ये होगा तो कहाँ होगा, तालाब में, नदी में, डैम सब में होगा नेचुरल तरीके से। और घरों में
छत के ऊपर इकट्ठा करके उसको पाइप के थ्रू भेजा जाएगा। सेकंड मेथड क्या है कि रिचार्ज वेल्स बनाए जाते हैं, कुएँ बनाए जाते हैं, ऐसे वेल्स खोदे जाते हैं जिसमें कि वो रेन वाटर आके जमा होगा। ठीक है, तो इसमें क्या करता है वो लोग कि पहले जो है रेन वाटर को कोशिश करते हैं कि गड्ढे वगैरह बना के रखे हैं या छोटा एक ट्रेंच जैसा है ना, रेक्टेंगुलर शेप का गड्ढा एक बना के रखे हैं जिसमें वो लोग जो है वो रेन वाटर को जमा कर देते हैं। फिर वहाँ से पाइप के थ्रू वो जो रिचार्ज कुआं बनाए हुए हैं, कुआं बनाए, वेल बनाए, उसमें वो पाइप के थ्रू उस पानी को भेज देते हैं। ठीक है, तो वो जो है रिचार्ज वेल जो है, या फिर रिचार्ज वेल या डग वेल आप बोलेंगे, खुदा हुआ कुआं है, जो भी है ना, गड्ढा करके कुआं जो बनाया गया है उसके थ्रू जो है वो रेन वाटर ज़मीन के नीचे चला जाएगा, सीपेज होके चला जाएगा ग्राउंड्स में। ठीक है, तो इस तरह रेन वाटर वहाँ पे भी ज़मीन के नीचे जमा होगा। तो इसके कारण क्या है कि वाटर लेवल जो है वो बढ़ते जाएगा, ज़मीन के नीचे का वाटर लेवल का टेबल भी, वाटर टेबल जो होता है वह बढ़ते जाएगा, ज़मीन के नीचे पानी भरता जाएगा, क्योंकि हम लोग अलाउ कर रहे हैं पानी को ज़मीन में जाने के लिए। ठीक है, अब रेन वाटर को जो है एक और तरीका भी है कि आप उसको मान लीजिए इरिगेशन के लिए यूज़ करना चाहते हैं, सिंचाई के लिए। उसके क्या करते हैं, बहुत सारे जो है फार्मर लोग हैं वो जिस फील्ड में पौधे नहीं लगे हुए हैं रेनी सीजन में, तो उस फील्ड में साइड में वो जो एक मुंडेर जैसा बनाते हैं ना, मिट्टी का इतना ऊंचा ऊंचा बाउंड्री जैसा बना देते हैं ताकि रेन वाटर उस फील्ड में, उस खेत में पूरा जमा हो जाए। जब उस खेत में जमा हो जाएगा, रेन वाटर जमा होकर रहेगा, फिर कुछ दिन बाद जब बारिश रुक जाएगी तो छोटी छोटी नहरों के थ्रू छोटे छोटे कैनाल्स बनाएंगे और उस रेन वाटर को भेज देंगे पौधों को सिंचाई करने के लिए, या वहाँ से उठा के डालेंगे। ठीक है, तो ये जो है ये सब तरीका है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, और उसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। वाटर चैप्टर इजी चैप्टर है, पर सभी साइंस बुक्स में, चाहे वो 11th तक का भी बुक हो, सब में एनवायरनमेंट से रिलेटेड, वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड, सॉइल एयर पोल्यूशन, सबसे रिलेटेड चैप्टर्स आपको हमेशा मिलेगा। और ये सब इजी चैप्टर भी है, हम लोग ये सब बातें समझते भी हैं क्योंकि एवरीडे लाइफ में हम लोग ये सब देख भी रहे हैं। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आप लोग को वीडियो पसंद आया तो फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और फिर वेट करिए, जल्दी ही नए नए वीडियो आएंगे, है ना। थैंक यू।